afternoon, students. Today we are going to start a concept of PowerPoint presentation. This concept is very important for you people. आप सब बच्चों के लिए ये concept बहुत important है और इस concept को हम ध्यान से अगर समझें तो इस concept में हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि पहले भी बताया आप बच्चों को कि आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं, हाउ यू विल यूज दिस कंसेप्ट इन योर डे टू डे लाइफ। PowerPoint presentation is very important for education purpose. सबसे ज़्यादा PowerPoint presentation education purpose में यूज होती है, education में उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये education में how PowerPoint presentation is used in education. You people are very well aware of this question. क्योंकि आप जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, you are getting so many online classes. So what the faculty generally do? They give PowerPoint presentation. They all give you all material in PowerPoint presentation. Why they are using PowerPoint presentation? This is the question. The answer is PowerPoint presentation is very easy. Let us start with PowerPoint presentation concept. This concept is very important for our student. Yes, students, we are talking about PowerPoint presentation. This is very important in terms of education. In every education, we are talking about online classes. Online classes have been held nowadays. Not only that, there are many things which we are using right now that now we are talking about PowerPoint presentation concepts. We are talking about this concept because this concept is very important nowadays, and we are using this for our online lectures. In education, PowerPoint is very important. There are many concepts we are using for PowerPoint presentations. These concepts are very important for every person. In education, why we are using PowerPoint presentation? This was my question earlier with you people. Why we are using PowerPoint presentation for our online classes or other educational classes? Because PowerPoint presentation is a method to present the points in points. PowerPoint presentation is used to present the things in bullets, numbers, and many more things. There are so many examples of PowerPoint presentation because this concept is very easy to understand. What we are teaching, how we are learning, and this is the bridge between teaching and learning. That is why PowerPoint presentation is very important nowadays. There are many concepts connected with PowerPoint presentations. Let me discuss with the layout. What are the layouts used for making any PowerPoint presentations? First, I will start with title slide. This title slide is used for PowerPoint presentation. This is the beginning of the slide. This slide is used at the beginning of every PowerPoint presentation. What is the purpose of this title slide PowerPoint presentation? This title slide, इसका नाम से ही पता लगता है कि ये टाइटल है किसी भी स्लाइड का या किसी भी PowerPoint में प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड बनाने के लिए, टाइटल बनाने के लिए किसी भी स्लाइड का, जिसका एग्जांपल आप सामने देख रहे हैं PowerPoint प्रेजेंटेशन में दिख रहा है कि PowerPoint प्रेजेंटेशन है एक टॉपिक और किसने इसको लिखा है, उसका ऑथर है। इसके साथ साथ इसको बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड शो भी कहा जाता है। जैसे किसी भी चीज का बिगिन और एंड होता है, इसी तरह टाइटल स्लाइड इज यूज्ड फॉर बिगिनिंग ऑफ एवरी स्लाइड। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक और भी है कि टाइटल स्लाइड जो है आपकी, वो सबसे ज्यादा यूज तब होती है जब आपको किसी भी टाइटल को शुरू करना होता है। जब भी when you are starting any presentation, then there is a need of title slide. इसका फायदा क्या है? It shows, कई बार आपकी प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा होती हैं, आपको पता नहीं होता है कौन सी प्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है। तो ये कैसे पता लगेगा?
टाइटल स्लाइड से, बिकॉज वी आर डूइंग सो मैनी और टेकिंग सो मैनी ऑनलाइन क्लासेस, तो हमारी अलग अलग प्रेजेंटेशंस में हमने फाइलों के नाम तो लिखे हुए हैं, लेकिन व्हेन वी रन दीज प्रेजेंटेशंस, जब हम इन प्रेजेंटेशंस को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाली प्रेजेंटेशन हमारे इस पर्पस के लिए है, दूसरी प्रेजेंटेशन वो उसके टाइटल को पढ़ने से होता है। तो इसलिए टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनी प्रेजेंटेशन। अब टाइटल में दो आपके पास वहां पर आपने देखा होगा रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। दो रेक्टेंगल्स का पर्पस क्या है, ये रेक्टेंगल हैं क्या एग्जैक्टली? दीज रेक्टेंगल्स आर नथिंग बट द टाइपिंग एरियाज। ये वो एरिया है जिसमें आपको एग्जैक्टली टाइप करना है। दिस इज द एरिया वेयर यू हैव टू टाइप, राइट? क्लियर? Rectangle areas are the areas where you have to type the text. आप उसको स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं, स्ट्रेच करके छोटा, उसको छोटा भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू योर रिक्वायरमेंट एंड नीड। लेकिन these are the areas, rectangles, let me again repeating you, these are the areas where this text can be written. ये टेक्स्ट आराम से इस एरिया में लिखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। मैं आपको पहले भी बता चुका था, देयर आर 5 डिफरेंट यूनिट्स इन योर पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। उसमें से जो सेकंड यूनिट है दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और ये सेकंड यूनिट आपका हर यूनिट का इक्वल वेटेज है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका पेपर 75 मार्क्स का है तो आपके हर 5 चैप्टर की इक्वल वेटेज है 15 मार्क्स की। तो इससे दो क्वेश्चन 7.5 के दो क्वेश्चंस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में से आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमने लास्ट की क्लासेस की थी उसमें भी एक चैप्टर अभी रहता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड प्रोसेसिंग कंसेप्ट, दैट आई विल कवर इन माई नेक्स्ट क्लास। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोगों को कंप्यूटर तो आता है, लेकिन वी आर टेकिंग दिस पेपर इन अ वेरी बहुत सिंपल मेथड में ले लेते हैं। बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आने वाला है, यहाँ प्रॉब्लम इज कि आपको पेपर में लिखना कैसे है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू विल फेस। थ्योरी में करना और प्रैक्टिकली करना इज डिफरेंट। यू हैव टू लर्न इन प्रैक्टिस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रैक्टिस में, बट यू हैव टू राइट इन अ थ्योरी फॉर्म। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पेपर यू पीपल आर गोइंग टू फेस। आपको वो लिखना है थ्योरी में। एंड हाउ यू विल राइट, you have to write within steps, you have to write in steps, you have to write in different, you have to write in different areas, you have to write in different concepts. This is very very important nowadays. अब मैं आपको अपनी क्लास में अक्सर बताता हूँ, बच्चों को भी बताता हूँ कि हाउ यू विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का ओवरकम कैसे करेंगे? आपको पहले स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स लिखने के बाद उन स्टेप्स को आपको एक एग्जाम्पल के साथ उन स्टेप्स को आपको क्लियर करना है, क्योंकि आपने वो स्टेप्स जहां से आप लिख रहे हो, आप जब तक उन स्टेप्स को आप क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप उन स्टेप्स को बताओगे नहीं, तब तक वो स्टेप्स आपके क्लियर नहीं होंगे। आपको उसका एग्जाम्पल डालना पड़ेगा। यू हैव सपोज यू आर राइटिंग अबाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, how PowerPoint presentation can be used, and what is slide, what is explain various types of slides. अब ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास है तो how you will write the answer of this question? First you will write PowerPoint presentation is used for educational purpose. Second, then you have to write this is used for, this will work as a bridge between teacher and the student. Second, this is the best method, best methodology to interact with the student. And there are many features of PowerPoint which are used for various purposes. अब इसके साथ साथ जो नया इनोवेशन हुआ है PowerPoint presentation में, that is media also. Somehow recordings, all the video recordings can be done with PowerPoint presentation simultaneously.
जिसको कि हम लोग आगे आपको बताएंगे कैसे आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं मीडिया के साथ, आपकी वीडियोस के साथ. यू कैन ऐड मल्टीमीडिया फीचर्स in your PowerPoint presentations also. But let me start with the concept that is nothing but layout. Now students, now we are talking about the layouts of PowerPoint presentations. Let me start with the one of the important and uh, beginning of this layout processes. One of these layouts are title slide. Title slide is nothing but a title of any PowerPoint presentation. You will find in this title slide there are two rectangles. These rectangles are basically used for writing of the text. In the example shown to you, I have written PowerPoint presentation in one rectangle and my name is in another rectangle. You can increase the size of this rectangle as well as you can decrease according to your requirement. That is up to you. Second is title and content slide. This is very important. This layout is very popular because all the contents you have to write in a page in various formats. There are some bullets and numbers are there, some pinpoints are there, some hand formats are there. All the PowerPoint slides are used for basically for writing of any key points, pinpoints, like that. Title and content slide, this is used for writing the title of the slide as well as content part, which is the second rectangle, which is very much big in size. This basically we are using the complete page in this particular slide because in earlier slide, title and slide, there were only two rectangles and these rectangles are very small. But in title and content slide, you will find there are still two rectangles, but the size of second rectangle is very big because this rectangle means we are using the whole page for writing of various points. And one more thing I am going to tell you about this PowerPoint presentation layout is what are you writing in your presentation that should not be repeated, because what are the points you are writing in presentation that should not repeat in your lecture also, because these points are basically used for the students, right? You have to give examples accordingly that you have to write in your notes option. There are options in PowerPoint presentations in slides. You can write notes in the bottom of every slide. This is the beauty of this PowerPoint presentation. You can even change the slide numbers. If you want your slide number 1 to 15 and you want slide number 4 to be at point number 12 and you want last slide to become the second slide, you can easily modify these slides according to your requirement also. Third, this is section header. This is the third layout of PowerPoint presentation. Again, you will find there are two rectangles are there. These rectangles are again nothing but the area you have to write, though this is not so much in use, but the next one is to content or comparison content. These are very important. Suppose I am writing any difference between any two difference between any two of the points, you can easily write here. This is called to content layout and another one is comparison layout. Two content layout are, suppose basically we are mix and match is there. You want to write mix and match, definition is one side and the main point on another side. You can use this presentation there. In not only that, you can add pics in that also. आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर कटिंग्स होती हैं उसमें पिक्स भी होती हैं, न्यूज़ भी होती हैं, आपने ध्यान से देखा होगा. There are some comparison statements also that previous government did this or present. Students, we are talking about layouts of PowerPoint presentations. Let me start with the. Let me start with the layout of PowerPoint presentation. First slide is title slide. This title slide, I'm giving you an example. You are
watching on your screen, this title slide is basically used for the beginning of any slide. Name of this slide is also title slide. There are two rectangles there. One is for writing the title and second one is for writing in subtitle. This is the area where you can write the text. These rectangle means you can write in this particular area. There is one more layout which is very much popular nowadays. This layout is title and content layout. Title is used for your PowerPoint presentation main topic, and the content is used for writing bullets and numbers, whatever the main points, the key points you want to show in your PowerPoint presentation. This type of layout is used for your number of slides. This layout is basically used all over the slides because title slide will be used only once, but title and content will be used thereafter. There is absolutely a big difference because title slide is used only once, but title and content slides are used for various slides, number of slides here. Apart from that, there are two important slides also. One is comparison slide. Let me brief about comparison. If there is any comparison of any two things like difference between find and replace command. Find is used for finding the text, but replace command is used to replace that particular text with some other text also. So when we are talking about difference, when we are talking about difference between various statements, difference between various topics, then there is a need of this layout. This layout is very important, and the layout name is comparison layout. So when we are comparing any two of the topics, then we'll use comparison layout. This slide again is very important. Though I have told you title and content slide is very much popular, and this slide is used for your PowerPoint presentations because title slide will be used only once, but title and content slide will be used number of times. There is the beauty of this PowerPoint presentation that whatever you have written in one presentation, you can make a copy of that presentation, and you can you can also delete the slides also, and you can rearrange your slides according to your utility. If you want to change slide number 2 to shift that slide into slide number 5, you can easily do that. आप लोगों को उसमें परेशान आपको बहुत इसमें फायदा भी है। पहला फायदा मैंने अभी बताया था कि आप स्लाइड्स को शिफ्ट कर सकते हैं। आपको 2 से 5 नंबर स्लाइड पे लेके जाना है, 2 नंबर स्लाइड को 5 पे, तो आप आराम से लेके उसको ड्रैग करके आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था कि आप स्लाइड की कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए यू जस्ट राइट क्लिक, आप अपने माउस का राइट क्लिक कीजिए, वहां से आप कॉपी सेलेक्ट करिए, और कॉपी आप जैसे ही उसको करेंगे वो उसकी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड के नाम से ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। जैसे मैं डुप्लीकेट स्लाइड को क्लिक करूंगा, यू विल गेट सेम स्लाइड ऑन स्लाइड नंबर 2। लेट मी स्टार्ट अगेन। मैं आपको एक बार दोबारा इसका एग्जांपल बता देता हूं हाउ यू कैन डू दैट। जस्ट राइट क्लिक, आप राइट क्लिक कीजिए उसको और फिर डुप्लीकेट स्लाइड को क्लिक कीजिए, यू विल गेट द सेम स्लाइड। आपको दूसरी स्लाइड उसी वक्त नीचे नजर आएगा। इसके साथ साथ बच्चों मैं यहाँ पर और बताना चाह रहा था आपको कि आप कंपैरिजन स्लाइड को हाउ यू विल यूज दैट कंपैरिजन स्लाइड। आप ये कंपैरिजन स्लाइड जो यूज करते हैं उसको कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, कैसे आप उसको यूज करेंगे। आपने सपोज लिखा यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज यूज्ड। Let me explain this. PowerPoint presentation, and here there are some points. I have told you this is used for educational purpose and easy to understand, and easy to understand है, एजुकेशनल पर्पस है, इजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को आप आराम से समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर और ध्यान देने वाली जरूरत है वो ये है
कि आप किस तरह से नई चीजों को ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने एक स्लाइड बनाया, स्लाइड नंबर 1 जिसको मैंने टाइटल स्लाइड के साथ बनाया था। स्लाइड नंबर 2 को मैंने बताया, जिसको मैंने आपको बताया था ये हमारी सेकंड स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड। तीसरा मैंने आपको बताया था कंपैरिजन ऑफ स्लाइड्स, कि आप दो स्लाइड्स में कंपैरिजन करना चाहते हैं, आप उसको लिखना चाहते हैं कि दिस इज यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज नॉट यूज्ड फॉर नॉट यूज्ड, आप कुछ भी इसमें देना चाहें। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आप किसी भी चीज को कंपैरिजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और टाइटल विल बी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके साथ साथ लेआउट में आपके पास एक और ऑप्शन आती है, पिक्चर विद कैप्शन ओनली। यू कैन इंसर्ट पिक्चर, आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट और पिक्चर को। आप इंसर्ट में जाके आप कोई भी पिक्चर वहां से सेलेक्ट करें, पिक्चर्स को आप ड्राइव से लें या ऑनलाइन लें, कहीं से भी आप पिक्चर्स को लेके देंगे, दैट पिक्चर कैन बी यूज्ड हियर, वो आपकी पिक्चर यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें आज के डेट में मल्टीमीडिया इम्पैक्ट्स भी दिए जाते हैं। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के साथ साथ उसमें जब आप मल्टीमीडिया कंटेंट को ऐड करते हैं, ये एक पार्ट है डिजाइनिंग के साथ साथ, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट उसमें दिखाने वाला हूँ, हाउ यू कैन यूज डिजाइन ऑप्शन। फर्स्ट यू जस्ट सेलेक्ट डिजाइन, आप डिजाइन ऑप्शन को सेलेक्ट करें, और डिजाइन ऑप्शंस में जो बहुत सारी अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। दीज ऑप्शंस आर बेसिकली विजार्ड्स, ये आपके बने हुए हैं, आप यू जस्ट राइट टेक्स्ट इन दैट, आपको सिर्फ उसमें टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट में आप कुछ भी अपने टेक्स्ट के जो भी आपके प्रोजेक्ट से, आपके टाइटल से मिलता जुलता है, आप देख सकते हैं। वट एवर आई एम चेंजिंग द डिजाइन, यू कैन सी इन दिस स्लाइड्स ऑल्सो, जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई थी उसमें वो कैसे चेंज होके आ रहा है। अब यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, आई एम गिविंग यू अ स्मॉल सॉर्ट, आई एम गिविंग यू स्मॉल project, you have to make a PowerPoint presentation for your टॉपिक का नाम क्या है आपका, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज यूनिट नंबर 5 ऑफ योर टॉपिक, आपके टॉपिक का यूनिट नंबर 5 है, उसमें आपने इसको करना है। यूनिट नंबर 5 आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है, आपने उसकी कम से कम 12 से 15 स्लाइड्स बनानी है, एंड यू कैन शेयर लेटर ऑन विद मी, मैं आपको उसको शेयर करने के लिए बता दूंगा। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक चीज और ध्यान रखने वाली थी, जो मैंने डिजाइन के साथ साथ आपको बताना चाह रहा था, वो है आपका एनिमेशन पार्ट। आप एनिमेशन हर स्लाइड के साथ, डिफरेंट स्लाइड का, हर एक स्लाइड का एक अलग एनिमेशन, यू कैन यूज इट, दिस इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड यू हैव टू यूज इट। आप उसको यूज करें, और नॉट ओनली दैट, यू कैन यूज इट विद योर सिंगल कमांड ऑल्सो, आप अपनी किसी भी सिंगल कमांड के साथ इस एनिमेशन को यूज कर सकते हैं। जहां तक एनिमेशन को इफेक्टिव बनाने का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने की बात करते हैं, एनिमेशन प्लेज वाइटल रोल इन दिस। एनिमेशन सबसे ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया था बच्चों, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मैंने आपको पहले शुरू में बिगनिंग में ही बताया था कि देयर इज अ लेआउट, आपको पहले लेआउट सेलेक्ट करना है। लेआउट में आगे थोड़ा सा कंसेप्ट्स पे आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास होता है कोट के साथ, कोटेशंस आपको लिखनी है कुछ, या ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में आपको कुछ देना है, आप उसको भी आराम से स्लाइड में दे सकते हैं। आपने अभी तक जितनी भी स्लाइड्स पढ़ी हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर 14 स्लाइड्स हैं आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में, वो आपको दिख रहा होगा। 14 जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लेआउट्स हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे पहले टाइटल स्लाइड, मैं रिपीट कर रहा हूं आप बच्चों, पहला टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड इज द फर्स्ट स्लाइड विच इज यूज्ड फॉर द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन को शुरू करने के लिए टाइटल स्लाइड की जरूरत पड़ती है। सेकेंड, टाइटल एंड कंटेंट, दिस इज अनदर स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड है जिसको आप यूज करते हैं कंटेंट के लिए। कंटेंट, वट एवर द मटीरियल इज देयर, जो आपका मटीरियल है उसको आप कंटेंट में दिखाते हैं। तीसरा आपका आता है कंपैरिजन स्लाइड। दिस कंपैरिजन स्लाइड हालांकि सेक्शन हेडर और टू कंटेंट स्लाइड में भी है, बट कंपैरिजन
the comparison slide is used for making difference. आपको कुछ difference लिखना है, कुछ दो अलग अलग टॉपिक्स में या एक टॉपिक सिमिलर टॉपिक में अलग अलग चीजों के ऊपर कुछ डिफरेंस आपको लिखना है, then you have to use comparison slide. इसके साथ साथ टाइटल ओनली स्लाइड. दिस स्लाइड इज ऑल्सो यूज बट नॉट सो मच इन यूज. इसमें आपको सिर्फ टाइटल लिखना है, बाकी कंटेंट आप नीचे पेस्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. साथ ही साथ ब्लैंक स्लाइड, आपको कोई सिर्फ कंटेंट देना है और कुछ टाइटल नहीं देना है तो आप ब्लैंक स्लाइड को यूज कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर फिर दोबारा बता देता हूँ कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो टाइटल स्लाइड है, दूसरा टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, तीसरा कंपैरिजन स्लाइड है, चौथा इसमें जो यूज होता है वो ब्लैंक स्लाइड होता है, और सबसे ज्यादा उसके बाद इन सब चीजों के बाद आपका सबसे लास्ट में यूज होता है आपका पिक्चर एंड कैप्शन स्लाइड. जो सबसे लास्ट स्लाइड होती है जिसमें हम थैंक्स लिखना चाहते हैं या थैंक यू लिखना चाहते हैं अपने व्यूवर्स के लिए या हमारे स्टूडेंट्स के लिए या फिर जिन लोगों को हमने प्रेजेंटेशन के बारे में बताया उनको अगर हम देना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज ब्लैंक स्लाइड फॉर दैट पर्पस ऑल्सो. अब स्लाइड शो को, फॉर बिगिनिंग ऑफ एनी स्लाइड शो देयर इज अ नीड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए अगर स्लाइड शो को हम रन करना चाहते हैं तो देयर इज अ कमांड. F5 इज अ कमांड फॉर स्लाइड शो. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि F5 कमांड जो है हमारी किसी भी स्लाइड शो को रन करने के काम आती है. ये तो शॉर्टकट कमांड थी, लेकिन अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रन दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देन देयर इज अ नीड ऑफ कमांड विच इज कॉल्ड स्लाइड शो. स्लाइड शो इज अ कमांड टू रन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए स्लाइड शो कमांड को यूज किया जाता है. स्लाइड शो कमांड का एक शॉर्टकट कमांड भी है, दैट इज F5 कमांड, जो आपका F5 कमांड आता है. अब आप स्लाइड शो कमांड को अगर आप यूज करते हैं तो स्लाइड शो कहां से आपको बिगिन करना है? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से शुरू करना है, या फिर जहां आपने बंद किया था वहां से आपको करना है, या फिर प्रेजेंटेशन जो है आपकी वहां से आपको उसको ऑनलाइन करना है, या फिर कस्टमाइज या कस्टम स्लाइड शो है वहां से आपको करना है. ये इसके तरीके. लेट अस स्टार्ट विद द बिगिनिंग. हम बिगिनिंग से इसको शुरू करते हैं. जैसे मैं बिगिनिंग से शुरू करूंगा यू विल फाइंड स्क्रीन पर सब कुछ ब्लैंक है और आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पूरे एक स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है. आपकी प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा स्क्रीन उस प्रेजेंटेशन को दिखा रहा है. दिस इज द बेस्ट व्यू ऑफ एनी प्रेजेंटेशन. किसी भी प्रेजेंटेशन को देखने के लिए ये सबसे बेस्ट व्यू होता है. इसको आप दो ढंग से रन कर सकते हैं. मैंने आपको इसका शॉर्टकट की भी बताया. F5 इज अ शॉर्टकट की. F5 इज यूज्ड फॉर रनिंग एनी प्रेजेंटेशन. आपको प्रेजेंटेशन रन करने के लिए F5 कमांड को, दिस इज द शॉर्टकट कमांड. और इसके साथ साथ अगर आप F5 को यूज नहीं करना चाहते देन यू कैन गो टू स्लाइड शो ऑप्शन. स्लाइड शो ऑप्शन में दो ऑप्शंस पहले आपको बता देता हूं. पहला फ्रॉम बिगिनिंग, या जहां से आप शुरू करना चाहते हैं. फ्रॉम करंट स्लाइड, उसके लिए फ्रॉम करंट स्लाइड. प्रेजेंट जो आपका ऑनगोइंग स्लाइड्स हैं, अगर आप वहां से शुरू करना चाहते हैं किसी को तो आप वहां से भी इसको शुरू कर सकते हैं. बट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो फर्स्ट आपका जो कमांड है वो आपको बता रहा है प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. यू कैन सी दिस इज द कमांड. स्लाइड शो में गए, उसके अंदर फ्रॉम बिगिनिंग वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया. Here you can see F5 also. Start from beginning. F5 is the shortcut command for running this PowerPoint presentation. PowerPoint presentation को चलाने के लिए F5 को आप सीधा भी यूज कर सकते हैं. मैंने F5 को यूज किया है. I am using this PowerPoint presentation from the beginning. यहाँ पर आप थोड़ा सा और चीजें, दो तीन चीजें मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ बच्चों यहाँ पर करने के लिए. वो प्रोजेक्ट ये है, यू हैव टू मेक अ 15 slides PowerPoint presentation on database management system. As I told you earlier, database management system is unit number 5 of your syllabus. Unit number 5 आपका database management system है. इसके ऊपर you have to make a PowerPoint presentation and this should not be more than 15 slides. और ये 15 स्लाइड से ज्यादा
नहीं होना चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप अलग अलग ढंग से, जैसे कि मैंने आज आपको बताया, आप उसमें एनिमेशन इम्पैक्ट को डालिए, उसमें आप ट्रांजिशंस को यूज करिए, और डिजाइन को, डिजाइन फॉर्मेट एज आई टोल्ड यू कि आप अलग अलग डिजाइन को यूज कर सकते हैं। और एनिमेशन को, एनिमेशन आप अपने हर कमांड के साथ यूज कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी आप यूज कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट क्लास दैट देयर आर सम commands which can be used for this PowerPoint presentations. अब ये कमांड्स कौन कौन सी कमांड्स हो सकती हैं, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से समझा था। यू कैन इंसर्ट टेबल्स, टेबल, देयर कैन बी अ टेबल, मल्टीपल टेबल्स। इससे अलावा मैंने आपको बताया था टेबल के साथ साथ मल्टी कॉलम टेबल्स। मल्टी कॉलम टेबल्स क्या होती हैं आपकी? मल्टी कॉलम टेबल्स, जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर में किस तरह का न्यूज़ होता है कि अगर 3 कॉलम्स का या 4 कॉलम्स का या 5 कॉलम्स का न्यूज़ है तो वो एक स्पेसिफिक एरिया में होता है। अगर आपके पास उसमें आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो क्या फ्लो होता है, आप थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ते हैं और वो जब वो कॉलम खत्म होता है तो न्यूज़ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट कॉलम से शुरू होती है और नेक्स्ट कॉलम के टॉप मोस्ट से, उसके ऊपर से शुरू होती है, फिर उस वो नीचे जाके खत्म होती है थर्ड कॉलम के, फिर वो टॉप से शुरू होती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कमांड कि आप अपनी किसी भी प्रेजेंटेशंस या किसी भी आप टेक्स्ट को आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं न्यूज़पेपर के फॉर्मेट में। नॉट ओनली दैट, यू कैन ऐड पिक्स, आप उसके अंदर पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं। टाइटल्स का ऑप्शन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया ही था कि टाइटल का ऑप्शन आपका सबसे ऊपर होता है, टाइटल एंड सब टाइटल। और सबसे ज्यादा पावर पॉइंट के लेआउट्स आप यूज करते हैं टाइटल एंड कंटेंट, क्योंकि उसमें सबसे ऊपर टाइटल वाला रेक्टेंगल छोटा होता है और कंटेंट का रेक्टेंगल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, एंड दैट कैन बी स्ट्रेच, सो वो आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। और लास्ट में जब हम लोग स्लाइड खत्म करने की बात करते हैं तो आप ब्लैंक स्लाइड को वहां पर यूज कर सकते हैं फॉर to just wind up your slideshow. For winding up your slideshow, you can use blank slide also. अब यहाँ पर लेआउट के साथ साथ मैं आपसे और शेयर कर रहा था कि यहाँ पर आप, मैंने आपसे पिछली क्लास में भी फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में बताया था। यहाँ पर उस फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में आप थोड़ा सा और मेंशन करेंगे, हाउ यू कैन यूज टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर्स इन दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया है उसमें आप हेडर एंड फुटर, हाउ यू कैन यूज दैट हेडर एंड फुटर इन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हेडर एंड फुटर्स को आप कैसे यूज करते हो उसके बारे में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब आपके पास एक प्रोजेक्ट के साथ साथ दो तीन प्रोजेक्ट्स और भी हैं। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग बच्चे बना सकते हैं। वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप सारे के सारे पांचों के पांचों यूनिट्स के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाएं। यूनिट नंबर 1 जो है आपका, दैट इज नथिंग बट MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट्स। आपके जो वर्ड प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे यूनिट नंबर 1 में आएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो है आपका, दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फिर यूनिट नंबर 3 में आपकी एक्सेल के कॉन्सेप्ट्स हैं। यूनिट नंबर 4 में एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और सबसे लास्ट वाला आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप उसको यूज करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बार और बच्चों बता देना चाहता हूँ कि आप डिजाइन के जो कंसेप्ट हैं, आप यू जस्ट सिलेक्ट एनी ऑफ डिजाइन कंसेप्ट, आप किसी भी डिजाइन कंसेप्ट को सेलेक्ट करके आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनिमेशन यू कैन यूज एंड स्लाइड शो, you can record your slideshow also. Recording of slideshow is also can be done. मैं स्लाइड शो के बारे में आपको पहले ही बता रहा था, फ्रॉम बिगिनिंग, आप बिगिनिंग से शुरू कर सकते हैं या फिर फ्रॉम करंट स्लाइड, जो स्लाइड आपने ओपन किया, जैसे सपोज मैंने 2 नंबर स्लाइड ओपन किया, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड नंबर 2, आई कैन स्टार्ट विद। आप इसको बंद करने के लिए यू कैन यूज एस्केप कमांड। एस्केप कमांड कौन सी कमांड है? दैट इज द फर्स्ट की ऑफ योर कीबोर्ड। ये आपके कीबोर्ड के ऊपर फर्स्ट की जो बनी हुई है उस पर छोटा सा लिखा होता है ESC। एस्केप कमांड इज यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। आपके पावर पॉइंट स्लाइड शो से बाहर आने के लिए यू कैन यूज योर एस्केप की ऑप्शन।
साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों 2-3 चीजें और आपको यहाँ पर बता देना जरूरी है। मैंने जैसे अभी बताया था, यू कैन रिकॉर्ड योर स्लाइड। आप अपनी स्लाइड को जिस भी जगह से, करंट स्लाइड से आप करना चाहते हैं रिकॉर्ड तो करंट स्लाइड से करें, या फिर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से अगर आप किसी स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिगिनिंग से भी आप उस स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग। दोनों ऑप्शन, जैसा कि हमने स्लाइड शो चलाते हुए भी आपको बताया था, दोनों ऑप्शंस थी, राइट फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड, स्लाइड की शुरुआत से, और दूसरा था रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, स्लाइड की बिल्कुल जो स्लाइड आपने ओपन की है उस वाली स्लाइड से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। यहां तक मैं आपको एनिमेशन को बता रहा था, यू कैन यूज एनिमेशन। आप उसमें बहुत सारे एनिमेशन आपके पास अवेलेबल हैं, अपीयर, फेड, फ्लाई, आप हर स्लाइड के साथ अलग एनिमेशन को यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज और बतानी होगी, सपोज मैं यहाँ पर कोई भी चीज लेके आ रहा हूँ, सपोज मैं इसको एनिमेशन में यूज करना चाहता हूँ, तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज आई वांट टू यूज इन फ्लाई मोड, so this is you can do. Suppose I want to use in a floating mode. Suppose I want to use in a split mode, in a wipe mode, appear mode. There are different modes you can use. देखिए आपको दिख रहा होगा इसका इम्पैक्ट। अपीयर, फेड करता हूं तो देखिए फेड से ठीक आ रहा है। फ्लाई मोड करता हूं तो एकदम फ्लाई होता है। फ्लोट करता हूं तो वो फ्लोट मोड में आता है। अभी स्प्लिट मोड में देखिए हाउ इट वर्क्स इन ए स्प्लिट मोड ऑल्सो। वाइप एकदम स्क्रॉल होके अलग से आ जाता है। There are several options which you can use in PowerPoint presentation to make your Power presentation better and it attractive also. Zoom is very popular nowadays. Zoom वाला PowerPoint presentation है। इसी तरह random bars में you will see there are, this is coming in such a method, glow and turn, glow करेगा और turn होके आएगा। So these are the various animation options. आप इन animation options को use कर सकते हैं। These are very popular nowadays. Pulse option is there, color pulse option is there, appear option is there, fade option is there, fly in option is there, float in option is there, split option is there, wipe option is there, shape option is there, wheel option is there, random bars option is there, glow and turn option is there, zoom option is there, bounce option. Now let me show you the bounce option, how this works. This is very beautiful option, bounce option. You can use it in your PowerPoint presentations. Bounce option, this is again a very good animation method. ये बहुत अच्छा इसका bounce option का आप use कर सकते हैं। Let me show this option to you people. एक मिनट बच्चों मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ how you can use. You just select this and go to add animation, then select bounce and you will see this is the output. Yes, this is the output. You can see how this command works. Let us start with another option here. This is spin option. This is the spin option. You can use this option for your PowerPoint presentation. Spin option. You just select it and spin it. Spin is just like it's a rotation of your word. This is again a method of displaying the content in different formats. You can use this command also. Spin option, lighten option. You can lighten, somehow you can lighten option. Then transparency, it will show in different method, but glow and shrink. Glow and shrink. This is glowing and it will shrink somehow. It will shrink, grow and shrink. This command can also be used, and there are many font colors. There are many font colors you can add in your animation. This is, so it is changing. The font color is also changing in. These are very important add animation tools in your PowerPoint presentations. Let me show you some important. This is you can use blush color. The color can be changed. So you see there are so many commands, so many animation methods you can use in your PowerPoint presentation. Let me explain once again. There are appear option, fade option, fly in option, float in option, split, wipe, shape,
wheel, random bars, glow and turn, zoom, bounce. Not only this, there are number of commands like spin. I have shown spin. This is the spin. See how it works. This is very beautiful animation example you can use in your PowerPoint presentation. Let me again show you another example. This is again very beautiful example. You will really like it. Wave option. This is wave option. This is very important. This is very beautiful wave option. You can select in your PowerPoint presentation. Wave option. So students, you can use these options in your PowerPoint presentations and make it very beautiful presentation. Suppose whatever you have written, that has to be in this particular format. आपके पास सारे formats में ये आना चाहिए और इसके साथ साथ effects को भी आप up and down कर सकते हो. There are number of impacts you can change. There are number of animation patterns you can change. Let me again tell you. This is again glow and turn. OK, this is glow and turn, glow and turn. So there are options. There are many commands. You can use those commands. Let me try again. Let me show one more command. You will also. This is shrink. This is shrink. Shrink and turn. Shrink and turn. It will first shrink, then it will turn down. So writing the same thing, there are number of methods of PowerPoint presentations which you can use for your PowerPoint presentations. There are number of animation impacts you can add in your PowerPoint presentations. As I told you in my class, you can use these PowerPoint presentations and you can add these animations to your PowerPoint presentations to make it very beautiful. When you will use these type of effects, you will able to understand the concept. And as I told you in my class that learning of these, इन चीजों को लर्न करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जब इनको लिखना होता है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है. Learning is bit easier because when you are doing practicals, you can easily learn. आप उसको आराम से learn कर सकते हो. But when you are writing in paper, it becomes difficult. So what is the solution of writing the commands? What is the solution of writing these things in your paper? Then you have to do some practice. Practice करने के बाद what you can do? You can write in steps. आपको पहला step लिखना है. Step number 1 will be this. Step number 2 will be this. Step number 3 will be this. Step number 4 will be this, and 5 will be this. And all these steps you can write with the help of example. You have to write an example. आपको एक example लिखना है. Example लिखने के बाद आप उसके steps लिखेंगे. तभी आप एक अच्छा आंसर दे पाएंगे. नहीं तो आप एक आंसर अच्छा नहीं दे पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल चीजों को थ्योरी में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है. यहाँ पर मैं आज आपके क्लास को अभी यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ और एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आज हमने किया है उसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं. मैंने आपको उसके लिए कुछ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए दिए हैं. आप उसको मेरे साथ लेटर ऑन शेयर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच बेटा.